سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری، درجہ حرارت گر گیا۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں تو جو درجہ حرارت گرا ہے اس کے بعد شہری بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ موسم اچھا ہو گیا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہے اور ژالہ باری جاری ہے، جس کے بعد درجہ حرارت گر گیا ہے اور لاہور میں سیاہ بادلوں کا راج ہے۔ تیز ہوائیں چل پڑی ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں، گرج چمک کے ساتھ بارش جاری ہے۔ رائے ون روڈ، اس کے علاوہ اڈا پلاٹ، جوہر ٹاؤن، گلبرگ میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں اولے بھی پڑے ہیں۔ یہ کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ سما کے سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارش ہو رہی ہے، تیز بارش جاری ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اور موسم جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے کیونکہ درجہ حرارت گر گیا ہے، جس کی وجہ سے جو لاہوری ہیں وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اپنے نمائندہ سے بھی بات کریں گے، مگر ابھی ہم آپ کو یہ دکھا بھی رہے ہیں کچھ مناظر جو کہ سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گرج چمک کے ساتھ بارش جاری ہے، تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اولے پڑ رہے ہیں، موسم خوشگوار ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے، درجہ حرارت گر گیا ہے۔ پھر مختلف علاقوں کی بات کریں تو جوہر ٹاؤن، گلبرگ، اڈا پلاٹ، رائے ونڈ، تمام تر علاقوں میں جو ہے نا وہ اس وقت بارش ہو رہی ہے اور یہ بارش کے ہی تازہ ترین مناظر ہیں جو کہ سما کی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج ہے اور بارش جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور پھر ساتھ ژالہ باری ہو رہی ہے اور جب ژالہ باری ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ وٹنس کرتے ہیں کہ درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ انسان کے موڈ پر بھی پڑتا ہے اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو لاہوری ہیں، جو شہری ہیں، وہ خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں اور موسم کو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کچھ تازہ ترین مناظر ہیں ژالہ باری کے جو کہ آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو مختلف علاقوں کے حوالے سے بتائیں تو گلبرگ میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اڈا پلاٹ، رائے ونڈ اور مختلف علاقوں میں جو ہے نا وہ یہی سچویشن ہے۔ ہم بات کر لیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سامیہ، مجھے بتائیں اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا مناظر دیکھ رہی ہیں، موسم کیسا ہے، منظر کشی کیجیے گا۔ بالکل شفق، ایسا ہی ہے کہ لاہور کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج ہوئی، سیاہ بادلوں نے لاہور پہ ڈیرے جمائے اور اس کے بعد تیز بارش کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور میں سے کلمہ چوک موجود ہوں، یہاں پر بھی تیز بارش بھی چل رہی ہے جبکہ اولے بھی یہاں پر پڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ موسلا دھار بارش کا یہ سلسلہ کچھ دیر تک تو جاری رہے گا، ساتھ ہی ساتھ رات بھر وقفے سے یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور 4 اپریل تک بارشیں جو ہے وہ یوں ہی جاری رہیں گی۔ بارشیں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں فلیش فلڈنگ کے خدشے کے بارے میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن بات کریں اگر خاص طور پر لاہور کی تو لاہور کے مختلف علاقے جن میں جوہر ٹاؤن، ڈیوس روڈ، ایبٹ روڈ، لکشمی چوک اور ان کے 4 اپریل تک بارشیں رہیں گی۔ بہت شکریہ سامیہ، آپ نے بڑا تفصیل ہمیں اپڈیٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب آگے بڑھیں اور ایک اور اہم خبر دیں آپ کو۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ چین، وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات، خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو کی گئی، پاک چین تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس آمد پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ٹیکا خان ثانی سے۔ ٹیکا خان ثانی، اس دورے کے حوالے سے ہمیں مزید بتائیے گا، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، پاکستانی وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار چین کے وزیر خارجہ کی دعوت پر اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے سے یہ ملاقات اس وقت اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں جاری ہے بیجنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور جو مشترکہ منصوبے ہیں اس پر تو بات ہو ہی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مین ایجنڈا ہے وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، علاقائی اور عالمی جو معاملات اس وقت ہے وہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات ہوگی۔ یقیناً پاکستان میں جو 2 روز قبل وزرائے خارجہ کی یہاں پہ آمد تھی 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی، پاکستان اس وقت جو مرکزی کار ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ ادا کر رہا ہے۔ لیڈنگ میڈیشن کا کردار پاکستان کا جو ہے وہ یقیناً اس حوالے سے چین کی حمایت بھی یہ دورہ جو کہ امن مشن کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ٹیکا خان ثانی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب ایک اور اہم معاملہ، امریکی صدر ٹرمپ ایران جنگ میں شامل نہ ہونے پر برطانیہ اور فرانس پر برس پڑے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ جو لندن کی طرح ابنائے حرمت سے تیل نہیں نکال رہے وہ امریکہ سے فیول خریدیں، جو ایسا نہیں کرتے وہ
इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी हिफाजत और वसाइल के हुसूल के लिए हिम्मत पैदा करें। हम उनके लिए मौजूद नहीं होंगे जैसे वो अमेरिका के लिए मौजूद नहीं थे। फ्रांस ने इसराइल जाने वाले तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं दी। पेरिस ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बिल्कुल भी मदद नहीं की। अमेरिका उनका ये रवैया कभी नहीं भूलेगा। ईरान अब बुनियादी तौर पर कमज़ोर या तबाह हो चुका मुश्किल मरहला मुकम्मल हो गया। सदर ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की ब्रीफिंग, कहा कि अगर तेहरान समझदारी का मुजाहिरा करे तो वो मुआहिदा कर लेगा, अगर डील ना की तो मजीद शिद्दत के साथ हमले जारी रहेंगे। ईरान की नई हुकूमत पहले वाली से अक्लमंद होनी चाहिए। जंग में आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। तेहरान कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे हमलों से ईरान के हौसले पस्त हो रहे हैं। यहाँ पर अहम खबर आपको दी, चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में 5 निकाती अमन मंसूबे के पर इत्तेफाक हो गया है और इस सिलसिले में फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया है, चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबे पर इत्तेफाक, फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया है। ये अहम खबर सामने आई है जिस हवाले से हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबे पर इत्तेफाक हो चुका है और इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर भी जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये सामने आई है खबर सामने आई है। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक हो चुका है जिसमें यह कहा गया है कि फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ और सिफारती हल की हिमायत पहला नुक्ता ये बयान किया गया है और मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ और सिफारती हल के हवाले से हिमायत पर भी जो है वो उसका इयादा किया गया है। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक हो गया है। फौरी जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बताया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही हैं जो समा अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है कि 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक किया गया है। चीन और पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, 5 निकाती अमन मंसूबे पर इत्तेफाक किया गया, आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, तफसीलात इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं और ये 5 निकाती जो एजेंडा है, इक़दाम है पाकिस्तान और चीन का, सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो आज की और अगले 48 घंटों की यही होने वाली है। बीजिंग में मुलाकात हुई है सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की, जिसमें खलीज और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। उन्होंने अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ काफ़ी लंबी ये मुलाकात चली है। फौरी जंगबंदी, जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज़, गैर अस्करी अहदाफ का तहफ़्फ़ुज़, बहरी रास्तों की सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बालादस्ती जो है वो इस 5 निकाती इक़दाम में या इस स्ट्रेटेजिक सेटिंग के अंदर वो तय पाए हैं। और अब इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद भी तमाम तर अमन की बहाली जो कि मशरिक़ वस्ता में सब बहुत ज़रूरी है, उसका आगाज़ हो जाएगा उन कोशिशों का। और ऑलरेडी भी मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त बहुत सारी जो ऐलानात हैं वो दफ्तर खारजा से हो के बाज़ाब्ता नहीं हुए, मगर इस वक्त भी बीजिंग से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अपने बहुत सारे हम मनसबों से इस वक्त बराह रास्त जो है वो कॉन्टैक्ट भी है और इस हवाले से वो राब्ते में भी हैं उनके साथ। ठीक है सुमेरा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर भी जोर दिया गया है। जी बिल्कुल, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि चीन और पाकिस्तान हकीकी कसीरुल-जहती निज़ाम को फ़रोग़ देने, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों की बुनियाद पर जामे अमन के फ्रेमवर्क के क़याम और देरपा अमन के हुसूल के लिए मुआहिदे की हिमायत करते हैं। और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले जो जनरल सेक्रेटरी हैं UN के अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस, उनके साथ भी एक बड़ी तफसीली बातचीत हुई थी हमारे नायब वज़ीर आज़म की। ये जो पॉइंट है ये आप उससे डिराइव कर सकते हैं कि इट माइट हैव बीन एडेड आफ्टर दैट मीटिंग कि उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को हाईलाइट करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। कमिंग फ्रॉम चाइना इसमें इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाती है। बहरी रास्तों की सलामती के हवाले से मैं खुद से बताना चाहूँगी कि आबनाए हुर्मज़ और उससे मुल्हिका जो पानी आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए इस्तेमाल होता है वो बहुत अहम रास्ते हैं। कुछ टाइम पहले बाबुल मंदेब की भी बातचीत शुरू हो गई थी, वो एक और डबल चोकिंग पॉइंट बन सकता था और दुनिया उससे बहुत बुरी तरह इफेक्ट होती। इस पर भी चीन और पाकिस्तान ने
फनी कैंट पर जोर दिया है कि आबनाए ठीक। हुर्मुज़ में मौजूद जहाज़ों और अमले की हिफाजत को कि यकीनी तमाम बनाया जाए। तराहम निकात पर जोर दिया गया और उनको फिर तय किया गया। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने हमें अपडेट किया। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बचत के हवाले से इजलास, कम आमदन वाले तबकात को रिलीफ पहुँचाने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत भी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और उसके बगैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इसके साथ साथ इसके अलावा इक़दामात की हिदायत और आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है, ऐसा कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा उस्मान खान ने। उस्मान, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बचत और किफायतशारी के लिए इक़दाम हैं, उसका जायजा लिया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों को सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वफाकी हुकूमत ने कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के हवाले से अहम इक़दाम किए हैं और जो आइंदा भी जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कटौती, किफायतशारी और बचत के मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए आम आदमी को 129 अरब रुपये का रिलीफ दिया है। वफाकी हुकूमत के बेवक्त फैसलों की वजह से मुल्क की ज़रूरियात के लिए जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका मुनासिब मिकदार मौजूद है। आवाम को रिलीफ फराहम करना जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। तो ये अहम मामला है जो कि ठीक है, आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अहम अव्वलीन तरजीह, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया को तारीख के बड़े तेल बहरान का सामना। एशिया में ईंधन की शदीद किल्लत से पाकिस्तान समेत कई ममालिक मुतासिर हैं। अमरीकी मीडिया ने तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जाने के खदशात का इजहार कर दिया है और तलब कम करने के लिए कीमतों में मजीद इजाफा भी नागुज़ीर करार दिया है। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने खबरदार किया कि ईरान अमरीका जंग तवील हुई तो आलमी मईशत को बड़ा धचका लग सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल सप्लाई में यौमिया तकरीबन 11 मिलियन बैरल की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ LNG सप्लाई मुतासर होने से गैस बहरान भी सर उठा रहा है। यूरोप में डीजल की किल्लत के खतरात बढ़ रहे हैं और आलमी महंगाई में इजाफा और मईशतों पर दबाव तेज हो रहा है। कई ममालिक ने ईंधन बचाने के इक़दामात और रैशनिंग शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तेल बहरान से निपटने के लिए आलमी ज़खायर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये मुस्तकिल और पायदार हल नहीं है। अब आपको बताएं कि आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों से अरब ममालिक भी मुतासर होने लगे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमतों में 70% से ज़्यादा इजाफे का इम्कान है। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यकम अप्रैल से मुत्तहिदा अरब अमारात में डीजल की कीमत में 72% इजाफे का इम्कान है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पेट्रोल की कीमत में 30% और E+ पेट्रोल की कीमत में 32% इजाफा मुतवक्के है। दूसरी जानिब ईरान में पोर्ट बंदराबाज हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी यासिर की मैयत ताफ्तान बॉर्डर पर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। यासिर के लवाहिकीन गुज़श्ता रोज़ ताफ्तान बॉर्डर पर पहुंचे थे। इस मौका पर बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे भी अहले खाना के साथ मौजूद थे। मैयत की हवालगी से मुतल्लिक पाकिस्तानी सिफारत खाने ने रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल को आगाह कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने गुज़श्ता रोज़ ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को खत लिखा था। मशरिक़ वस्ता जंग से महंगाई बढ़ने की शरह में इजाफे का इम्कान है। रवा माह इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 7.3% तक जाने की तवक्को है। AKD सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट जारी कर दी गई। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। शकील, इस रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया? देखिए, मिडल ईस्ट जो वॉर है उसके मुल्की मईशत पर असरात के बारे में इस रिपोर्ट में तज्जिया बताया गया और कहा गया है कि इस महीने जो क्लोज हो रहा है मंथ 1.2% महंगाई में इजाफा होगा और ये 7.3% पर पहुंच जाएगी। वजह यह है कि पेट्रोल, डीजल और ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, 19.5% तक किराए बढ़ गए हैं और साथ साथ रिहाइश 11% से ज्यादा और दीगर अशिया 20% से ज्यादा महंगी होने का खदशा बताया गया है। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से आलमी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा तो नहीं किया, लेकिन बिजली और गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी और इसमें AKD सिक्योरिटीज ने कहा है कि इसके असरात जो है मुल्की मईशत पर वो मनफी होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस LNG की सप्लाई सिफर। अप्रैल से पावर प्लांट को गैस की फराहमी में नुमाया कमी का खदशा।
मुल्क में बिजली के रोजाना 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का खतरा पैदा हो गया। हुकूमत खाद कारखानों की गैस कम करके पावर सेक्टर को देने पर गौर कर रही है और ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाद महंगे डीजल से बिजली की पैदावारी लागत 80 रुपए फी यूनिट से बढ़ने का इम्कान है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि डीजल से बिजली पैदा ना करने के फैसले से तवानाई का बड़ा बहरान सर उठा सकता है। ऐसे हालात में सोलराइजेशन ने तवानाई रिफॉर्म्स को मुतासर होने से बचा लिया। नेपरा के ज़राए का कहना है कि इस वक्त मुल्क में सोलर से मजमूई तौर पर 19,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जिसमें से 6,000 मेगावाट नेट मीटरिंग सार्फिन फराहम कर रहे हैं। सोलराइजेशन ना होती तो हुकूमत को महंगे दरामदी फ्यूल वाले प्लांट्स चलाने पड़ते, बिजली की पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और हुकूमत को तवील लोड शेडिंग करनी पड़ सकती थी। जानिब आपको ये बताएं कि हज़ारा मोटरवे पर इंस्पेक्टर यासिर अरफात फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद हो गए। वो हादसे का शिकार शहरियों की मदद कर रहे थे जब तेज़ रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। शहीद को कौम का हीरो करार देते हुए कहा, पूरी वजारत मवासिलात मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी है। बेवा और बच्चों की देखभाल महकमे की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। हज़ारा मोटरवे पर अफसोसनाक वाकया, मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर यासिर अराफात शहीद हो गए। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर यासिर अराफात एक ट्रैफिक हादसे के बाद शहरियों की मदद कर रहे थे जब उन्हें एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और वो मौका पर ही शहीद हो गए। शहीद ने सोगवारान में बेवा और 4 बच्चे छोड़े। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ करते हुए कहा, सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। दुख की इस घड़ी में पूरी वजारत मवासिलात शहीद के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। शहीद इंस्पेक्टर के बच्चों और बेवा की देखभाल महकमा की अव्वलीन जिम्मेदारी होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मोटरवे पुलिस के नडर अफसर ने इंसानियत की खिदमत करते हुए जामे शहादत नोश किया। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले इंस्पेक्टर यासिर अराफात कौम के हीरो करार। वजीर मवासिलात ने हादसे के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी।